Hello, Gaurav and Ranmay. Can you hear me clearly? Gaurav? Yes, ma'am. Okay, great. Gaurav? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, just a sec. Okay, so today we will be doing a topic which is called as averages. Again, an important topic in your maths. Okay, this topic has to do nothing with the previous math sessions that we have taken, but yes, the calculation methods will really boost up your speeds. Okay, so let me quickly share the screen so that I get the open board to explain you everything. But before that, let me know in our day-to-day life, where do we use this word average, like average rainfall? So similar to that, which are the different places where we use this word averages? Cars and bikes. Yeah, average speed, average mileage. I mean, average Yeah. mileage नहीं बोलते, mileage खुद ही एक average. Mileage. Yeah, great. Yeah. और कोई? Yes, नहीं कहाँ पे यूज होता है ये वर्ड? We also use it during calculation. Yeah, marks के calculation करना है to check anyone's performance, like throughout the year, how was the Yeah. performance? Like people don't judge you on only one exam; they see your overall performance, right? Because sometimes क्या होता है कि एक टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, but in another test might be कुछ प्रॉब्लम आ गया है, तो आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बस सिर्फ वही टेस्ट के ऊपर आपका जजमेंट होएगा क्या? नहीं, they'll see your overall performance. Okay, yeah. So there's where we calculate the average marks, average percentage. Yes. Anywhere else, मम्मी पापा को कभी ये word average बोलते हुए सुना है regular life में, day to day life में? Yes. Let's say कभी कभी ऐसा discussion हुआ रहेगा, like average family income is so and so, like 5 people are earning, so average family income बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते ये इतना earn कर रहा है, ये इतना earn कर रहा है. No, what do you calculate in that? The family का income, right? और एक बंदे का अगर आप सैलरी देखते हो, like someone is they working on commission basis, तो वो बंदे का सैलरी वो कैसे कैलकुलेट करेगा? वो ऐसा बोलेगा कि जनवरी में मुझे 60,000 मिला, फरवरी में मुझे 80 मिला, मार्च में मुझे 60 मिला. कौन सुनने वाला इतना लंबा स्टोरी उसका? what you will ask him then? अगर वो ऐसा बोलना चालू करता तो आप लोग उसको क्या बोलोगे? Average salary. सीधा सीधा पूछोगे, अरे एवरेज सैलरी बता, इतना पूरा स्टोरी बताने की जरूरत नहीं है, राइट? या so this is where the averages actually make our life easy, like big calculations. In one word you can describe everything. So this is the use of averages. It is going to be used throughout your life, right? So you should this topic is something like and for CT this is for sure आपको 2 questions minimum प्योर कॉन्स में आएंगे. मतलब वो जो 30 मार्क्स का मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, प्योर कॉन्स सेक्शन, वहां पे आएंगे. और जो डीआई होता है ना 20 मार्क्स का, 15-20 मार्क्स का जो डीआई सेक्शन होता है, हर सेट में मिनिमम 1 या 2 क्वेश्चंस एवरेजेस पे है. सो जस्ट इमेजिन 7 से 8 क्वेश्चंस आपके यही टॉपिक पे रहेंगे, दैट इज एवरेजेस. सो समझ में आ रहा है ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है? टॉपिक इज वेरी इजी. कभी दिमाग में नींद में भी मत सोचना कि ये टॉपिक को स्किप कर देते हैं. नेवर एवर डू दैट. इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी बहुत इजी आते हैं. At any point of time, if you people feel, even Darshan, Gaurav, Rinvai, this is for all 3 of you. At any point of time, कभी भी ऐसा लगा ना कॉन्स डिफिकल्ट है, इसको स्किप करना है, वही मोमेंट पे मुझे कॉल करना. Don't do this blunder of skipping cons. ट्रस्ट मी, क्वांट सीटी में बहुत इजी आता है. अगर आपका बेसिक क्वांट्स भी क्लियर है, स्टिल यू हैव चांसेस 50 में से 40 क्वेश्चंस राइट होने के. एलआर दिखता इजी है, बट जब आप मॉक सॉल्व करना चालू करोगे तब आपको लगेगा ओ फिश, क्वांट्स पे ज्यादा फोकस किया होता तो ज्यादा बेटर होता. दो वो 100 मार्क्स का है, मैंने शायद बोला भी था आप लोगों को सेशन में. क्वांट्स कितने मार्क्स का आता है और कितने मार्क्स का आता है टोटल क्वांट सेक्शन? 50. उसमें से मैंने आपको बोला था लाइक 30 to 35 क्वेश्चन प्योर मैथ्स. ओके, एंड 15 से 20 क्वेश्चन डीआई पे बेस्ड रहते हैं. डीआई मतलब क्या? ग्राफ्स.
ओके उसमें मैंने एलआर का बोला था, आपको बाइफिकेशन दिया था। एलआर में 3 सेक्शंस हो सकते हैं, लाइक 15 क्वेश्चन वर्बल रीजनिंग के आते हैं, ओके जो आपकी वर्बल की मैम चेक करेगी। 15 यहाँ पे चला गया, तो 60 क्वेश्चन जो होते हैं वो प्योर एलआर पे आते हैं। जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम अरेंजमेंट्स लिया था, याद है? मैंने काफी टॉपिक्स भी बताए थे प्योर एलआर में क्या आता है। और 25 मार्क्स जो होते हैं वो विजुअल रीजनिंग के होते हैं। नाउ क्लब दिस एंड दिस, कितना मार्क्स हो गया? 75. अभी ये 75 पे फोकस करना है या ये 75 पे फोकस करना है? क्योंकि ये 75 जो है ये इजी कैटेगरी में आता है, और ये 75 जो है ये मीडियम टू डिफिकल्ट कैटेगरी में आता है। नाउ यू सी वेयर यू हैव टू फोकस फ्रॉम डे 1। इसका मीनिंग ये नहीं है कि इसको स्किप करो, किसको भी स्किप नहीं करना है। इट्स जस्ट दैट क्वांट्स में अपने को हैबिट रहता है, नहीं वो टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है, मुझे तो वैसे भी मैथ्स आता ही नहीं है, मुझे तो मैथ्स से डर लगता है, सो मैथ्स को छोड़ दो, 30 मार्क्स तो है। अरे वही 30 मार्क्स आपको बहुत अच्छे स्कोर्स देने वाले। ओके सो डोंट स्किप दिस सेक्शन। ओके दर्शन? Darshan audible? Yes, ma'am. Okay, great. And Darshan, where were you last class? मैम फंक्शन था, मैंने रिकॉर्डिंग सेशन देख लिया ना? Great. And अगर कोई सेशन मिस भी होता है, just inform me on the group या सर को इन्फॉर्म करो, take the recording so that next session में आपका लिंक ना टूटे। Okay, so now let's focus on average. Average, पूरा average हम सिर्फ एक ही फॉर्मूला पे वर्क करेंगे। Average is equal to sum upon n। इसमें सम क्या है और n क्या है? लेट्स से अगर मुझे एवरेज निकालना है 65, 80, 90, 75 एंड आई वांट टू आई पुट वन मोर नंबर 40। मुझे ये 5 नंबर का एवरेज निकालना है। व्हाट डू यू मीन बाय सम? मृण्मयी सम मतलब क्या? उन नंबर्स के टोटल करने की। परफेक्ट। 40 प्लस 65 प्लस 80, अभी टोटल करने मत लगो, मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बता रही हूँ कुछ। ओके एंड यू विल डिवाइड दिस नंबर बाय व्हाट? n। n का मीनिंग क्या होता है? वो नंबर्स कितने वो लिखने, मतलब 5 नंबर्स, राइट? ओके नाउ व्हेन यू आर एडिंग दिस लिस्ट, हमेशा ऐड कैसे करना है? अगर 2 डिजिट नंबर है तो हंड्रेड्स बनाने की कोशिश करो। हंड्रेड्स कैसे बनते हैं? 40 और 60 कितना हो गया? 100। यस उसके बाद में 80 और 70 कितना होएगा? व्हाट इज 80 प्लस 70? 150। 150, राइट? अभी 150 और ये 5 इधर का और ये 5 इधर का कितना हो गया? 160, बराबर ना? ओके अभी 160 और 90 कितना देगा आपको? 250। 250 और एक वो 100 था ना 40 60 वाला, सो टोटल कितना हो गया? 350 अपॉन 5। तो एवरेज कितना आया आपका? 70। ये समझा? Now let's see if I say that sum of scores of all student in the class is equal to 450, and let's say there are 10 students in the class. Okay, can you tell me what is the average over here? Now sum direct दिया हुआ है, हो गया 450 divided by 10, that is 45. Yeah, but let's say अगर मैंने बोला average weight of 6 people, 6 people मतलब n का वैल्यू 6 है, average weight of 6 people is equal to 60. What is the sum of all the weights of all the people in the group? 360. So basically आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? You need to find sum. So sum is equal to what? It is average into n, right? Yes. So this will be what? This will be 360 into 6, that is 360. This is very important. हर क्वेश्चन में हम यही करने वाले हैं। ओके सो आपको सी एवरेजेस में 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ओके एक होता है बेसिक जो ये फॉर्मूला पे होता है, और दूसरा होता है वेटेड एवरेज। वो मैं आपको समझाऊंगी जैसे टाइम आएगा। ओके अभी मैं तुरंत नहीं करने वाली वेटेड एवरेज। सिर्फ ये 2 चीजें अगर आपको पता है, एवरेजेस हो गया, बस उतना ही करना है एवरेजेस में, एंड अप्लाई करते आना चाहिए। सो यू हैव टू पुट योर कॉमन सेंस, यहाँ पे कॉमन सेंस ज्यादा यूज होने वाला है आपका। ओके यस आकांक्षा, नो इश्यूज।
Okay, so now this was a basic formula. Let's start with some questions. Basic questions के साथ start करते हैं. But before basic question, let me ask you a few questions. मुझे answers एकदम quick चाहिए, okay? Akansha, you can put it in chat. बाकी लोग unmute हो जाओ. Quickly. Quickly unmute, all of you. It's a rapid fire what we are playing right now. Gaurav, waiting for you. Yes, ma'am. Yeah. So quickly, what is average of first 5 natural numbers? Don't forget it's a rapid fire. Rapid fire का meaning क्या है? तुरंत आंसर आना चाहिए. Yes, Sunanbhai, go ahead. 5. What is average of first 5 natural numbers? Which are first 5 natural numbers, Darshan? 1 2 3 4 1, 2, 3, 5 4. So उनका average क्या रहेगा? ओके 1 आएगा क्या? 15 3 आएगा 3 3 आएगा ना? See, 1, 2, 3, 4, 5. एवरेज का मीनिंग क्या होता है हिंदी में? अगर मैं बोलूँ ना बीच का नंबर, एवरेज का मीनिंग क्या होता है? ऑन एन एवरेज, मतलब सबकी वैल्यूज ले लो और उनका मिडिल नंबर क्या आ रहा है, मीन नंबर क्या आ रहा है, एवरेज का डेफिनेशन. सो इनका अगर आप यहाँ पे देखते हो, इनके बीच में कितने का डिफरेंस है? कांस्टेंट है क्या ये डिफरेंस? 1 1 1 1 का? यस अगर कांस्टेंट डिफरेंस रहा ना, डायरेक्टली जो भी मिडिल नंबर रहेगा वो आपका आंसर रहता है. ओके Gaurav, what is average of first 10 natural numbers? First 10 natural numbers 5. No. Mrunmai. Mm. Akansha, put it in chat. Mrunmai. First 10. Darshan. 10 Darshan 10 कैसे आएगा? 5 ही आएगा. Natural numbers. First 10 natural numbers क्या होते हैं? 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 7, 8, 9 and 10. ये भी इसमें बीच का नंबर तो है ही नहीं ना. 5 इधर है, 5 इधर है, पर यहाँ पे बीच में नंबर एक हो सकता है ना 5.5. Yes. अगर चलो बीच का नंबर एक ही होता है, मतलब एवरेज कैसे निकालते हैं? ऐड ऑल द नंबर्स. 1 plus 2 6, 6 plus 4 10, 10 plus 5 15, 15 plus 6 21, 7 28, plus 6 45 and 55. 5 by 10 कितना आया? 5.5. 5.5. समझो? Okay, next one. Gaurav, first 5 even numbers का average चाहिए. First 5 even numbers. कौन से है first 5 even numbers by the way? 2 4 6 8 10. Average. 6 6, correct. Middle number? Because Yes. यहाँ पे अगर आप देखते हो constant. constant है 2 2 2 2 2 2 का. Okay. Next. Yes. Darshan, average of first 6 odd numbers. Which are first 6 odd numbers? 1 3 5 7 9 11 11. Average 6 6. यहाँ पे middle number देखना पड़ेगा. That will be 6, right? समझ में आ रहा है सब लोगों को? और Yes. अगर क्रॉस चेक करते हो ना, ऐड करके देखो नंबर्स. 1 plus 3 4, 4 plus 5 10, 10 plus 7 17, 17 plus 9 26, 26 plus 11 will give you 36. 36 divided by 6 कितना आता है? 6. आया? मैच हो गया? समझ में आ रहा है ये कैसे कैलकुलेशंस चल रहे हैं? ओके. Yes. Now all of you think on this. मुझे चाहिए first 5 prime numbers का average. Think and then give me the answer. First 5 prime numbers. आकांक्षा, आपकी तरफ से एक भी आंसर नहीं आया डियर.
5. No, 5 is not the answer. First 3 natural number या 5 natural. Huh? Question क्या था first? First 5 prime numbers. फाइव पॉइंट 3. 3. 8.5. 5.6 Three. का आंसर किसने दिया? गौरव ने दिया ना 5.6. यस मैम. मैम 5.6. Very good, Akansha. See, 2, 3, 5, 7 and 11. ये 11. अभी इनका गैप कांस्टेंट है क्या दर्शन? दर्शन No. नहीं. तो यहाँ पे आपका लॉजिक वर्क करेगा कि आपने 5 बोला, आपने मिडिल नंबर बोला, राइट? बट वो लॉजिक करेक्ट था क्या? वो लॉजिक कब अप्लाई होता है? जब इनके बीच का जो गैप है वो कांस्टेंट है. कांस्टेंट है क्या दर्शन यहाँ पे गैप? No. नो. तो फिर आप क्या करोगे? आपका नॉर्मल मेथड क्या है? तो नॉर्मल मेथड इनको ऐड करो. ऐड करने के बाद मिलेगा आपको 28 डिवाइडेड बाय 5. सो 5.6. समझा? Understood this, everyone? Yes. यस. Okay. Can we solve few questions now? यस. Okay. Let's solve this question together. अभी ये सारे hello? Am I audible? Yes. Okay. अभी ये सारे questions जो है application based questions है. Okay. Let's see them one by one. Average weight of group of 10 people. 10 क्या है यहाँ पे? N. Very good. Total number. Is increased by 1 kg. मतलब जो भी एवरेज था, हमको पता नहीं एवरेज कितना था, सो लेट द एवरेज बी x. ओके, वो कितने से बढ़ गया? व्हाट इज द न्यू एवरेज दैट वी हैव? Plus 1. वन. x plus 1, right? When one of them weighing 58 is replaced by new person. इसका मीनिंग क्या हुआ? ये जो 10 लोगों का ग्रुप था उसमें से ये जो 58 है ये क्या कर रहा है? ग्रुप को एग्जिट कर रहा है, और ये जो न्यू पर्सन है वो क्या कर रहा है? ग्रुप में एंट्री ले रहा है. ये समझा? ये समझा क्या सबको? यस. And now the question is, what is the weight of the new person? Okay, so let the weight of the new person be n, और हम लोग इसको क्या ले? y ले लेते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे ना वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं. इनिशियली आपको ओल्ड नंबर्स क्या दिए थे और न्यू नंबर्स क्या दिए हैं उस पे वर्कआउट करो. ओल्ड how many, what was the value of n? ओल्ड n कितने थे जब ये बंदा था ग्रुप के अंदर? 10. Yes. ओके. इनिशियल एवरेज हमने क्या कंसिडर किया हुआ है? एक्स. x. हमारे फॉर्मूला के हिसाब से सम क्या होएगा? एक्स अपॉन 10. 10x. x upon 10 रहेगा क्या? 10x. 10x, right? This will be 10x. ये समझा सबको? यस. ओके. अभी न्यू वैल्यूज चेक करते हैं. न्यू वैल्यूज में न्यू एवरेज क्या है हमारा? अच्छा, न्यू n कितना है? एक गया तो दूसरा आ भी गया वापस. 10. n 10 ही रहा ना, कि n 10 चेंज हुआ है. n 58 वाला गया तो ये न्यू पर्सन आया ना ग्रुप के अंदर, तो 10 में से 58 गया 9, एक और बंदा आ गया वापस 10 हो गया, राइट? यस. ओके. न्यू एवरेज कितना निकाला हम लोगों ने? एक्स प्लस 1. x plus 1. इसके हिसाब से सम कितना होना चाहिए? 10x plus 1. 10x plus 10. 10. 10 into x plus 1 और else 10x plus. Plus. ये समझा क्या सबको यहाँ तक? Yes. Yes. अभी एक ऑब्जर्व करो एक चीज यहाँ पे. ओरिजिनल सम कितना था 10x. और न्यू सम कितना है? 10x plus 10. कितने का डिफरेंस है ये दोनों सम में? 10. 10 का. 10 का 1. क्यों आ रहा है ये डिफरेंस? सम में आ रहा है 10 का, ये क्यों आ रहा है? एक बंदा गया, दूसरा बंदा आ गया. ये समझ में आया क्या? यस. यस. तो ये जो बंदा गया था ये 58 वाला गया, और जो दूसरा बंदा है उसने ये डिफरेंस कितना क्रिएट किया है? लेट्स से ये जो न्यू बंदा आता उसका भी वेट 58 रहता, तो 10 का डिफरेंस आता क्या? आपके एवरेज को कोई फर्क पड़ता था क्या? नो.
नहीं ना, बट आपका एवरेज बढ़ गया है, मतलब जो नया बंदा है ग्रुप में उसका वेट ज्यादा होना चाहिए ना, तभी एवरेज उसने बढ़ा दिया है ग्रुप का। समझ में आ रहा है क्या? Yes. लेट्स से सब लोगों ने सीसॉ तो कभी कभी खेला ही होगा ना, कभी ना कभी बचपन में तो खेला ही होगा। ओके, नाउ लेट्स से एक seesaw, like on seesaw there are two people sitting. We'll take two people from you only, Gaurav and Darshan. Okay, let us assume दोनों का weight same है. What will happen to seesaw if both of them वो लोग अगर अपने पैर उठा लेते हैं, what will happen to seesaw? It will like नीचे भी नहीं आएगा, ऊपर भी। Middle. ये कुछ ऐसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन दिखेगा, ये बन नहीं रही है स्ट्रेट लाइन, बट अब अज्यूम कर सकते हो ना स्ट्रेट लाइन। यस, Yes. तो ये दर्शन एंड दिस इज गौरव। बट लेट्स से अब गौरव यहाँ से चला गया और यहाँ पे गौरव की जगह पे कोई दूसरा बंदा आ गया। ओके, बट ये जो बंदा आया है ना, इसका वेट दर्शन से ज्यादा है, क्या होएगा? One side will be down. ये ऐसा कुछ हो जाएगा अभी, राइट? एंड इफ अट ऑल जो दूसरा बंदा आता उस वहां पे, इफ अट ऑल वो दर्शन के वेट से उसका वेट कम रहता तो क्या होता? बैलेंस कुछ ऐसे हो जाता, like Darshan would have went down. Understood this difference? So can we say over here that if your average is increasing, that means the person who came in the group, उसका weight ज्यादा है जो person group में से गया है उसके comparison में? Are you people getting this logic over here? See, we are using common sense. If you want, I can go with the steps. जो आप conventional methods आप schools में करते थे, we can go with that. But फिर वहां पे और यहाँ पे difference क्या रहेगा? If you remember, I told you in the start, we have to just try to observe the shortcut methods everywhere. Yeah. So, what could be said about the new person's weight? कितना रहेगा? Can we say the new person's weight minus the old person's weight, differences of 10? Yes. Yes or no? Because rest of the people were same. They didn't move away from the group or no one else came in the group. So the difference was created because of these two people only. And if your weight average is increasing, that means new person is more heavier as compared to the old person. So now can you tell me what is the weight of new person if old person is 58? 68. Understood this? Understood this, everyone? Girls, did you understand this? Akansha, Mrinmay? Hello? Hello, Akansha, Mrinmay? मैम 68 कैसे आया? मृण्मय डिस्कनेक्ट हो गए थे क्या बेटा? नहीं मैम, सुन रही थी पर वो क्लियर आउट। ओके मृण्मय, ये जो डिफरेंस आया 10 का, ये आपने मुझे बताया था 10 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ तक समझा? ओके ना, ये जो 10% का ग्रुप था, ओके, ये 10% के ग्रुप में से एक बंदा बाहर गया और एक बंदा अंदर आया, बराबर? बाकी के लोग ऐसे के ऐसे ही थे, वो उन्होंने ग्रुप छोड़ा नहीं, राइट? ओके, तो ये जो बाहर गया ये 58 वेट का था, ओके, और जो ये न्यू बंदा आ रहा है, इन दोनों के वेट का डिफरेंस 10 आना चाहिए, बिकॉज बाकी के लोग तो चेंज ही नहीं हुए। यस। और कौन हैवी है वो कैसे समझेगा? एवरेज वेट यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, इसका मीनिंग न्यू बंदा है वो हैवी है, और कितना हैवी है वो ओल्ड पर्सन से? और डिफरेंस 10 है तो 10 से ज्यादा है। यस समझी। क्यों आया? हाँ समझा। This is the shortcut that we have taken. If you want, I'll explain you the conventional method. Do you want to explain the conventional method? No मैम, समझा अभी। Okay, great. आकांक्षा, आपका रिप्लाई नहीं आया है डियर, चैट पे भी नहीं आया है। मैम समझा मुझे। We go on to the next one then. Let us take some easy questions first and then we'll come to this. Just a second, people. Okay, let's do this question. The average temperature on Wednesday, Thursday, Friday was 24 degrees.
How many days are we considering over here? Wednesday, Thursday, Friday. 3. So can I say n is equal to 3? And ये 24 क्या है? What is this 24? Average. Average. So average is equal to 20. Can I find value of sum over here? We know how to do it now, right? How do we find 24. sum? 92. Check करो गौरव calculation. 72. 4 into 3 करोगे तो कितना आएगा? 72. Okay? Yeah? Okay, great. So sum आ गया, n आ गया, average आ गया. ये हुआ आपका कौन से डेज का सम है ये? वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे. 3 दिन का टेम्परेचर अगर ऐड करोगे तो कितना टेम्परेचर हो रहा है गौरव? 72 डिग्रीज. ये समझा क्या यहाँ तक सबको? Yes. Okay. नेक्स्ट स्टेटमेंट, एवरेज टेम्परेचर ऑन थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. मतलब नेक्स्ट 3 डेज अगर आप चेक करो, एवरेज कितना दिया है? कितने n का वैल्यू कितना है? एवरेज कितना है? टेल मी. कितना लूं यहाँ पे? 3 and 3. Average 26. ये थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 3 डेज ही है. सो अगेन 3 एंड यहाँ पे कितना रहेगा? 26. कैन वी फाइंड सम ओवर हियर? 78. यस. कितना आएगा यहाँ पे ये सम? 78. 78. ये जो सम है वो कौन से दिन का है? थर्सडे प्लस फ्राइडे प्लस सैटरडे. कितना है ये? 78. एंड उसमें से उन लोगों ने सैटरडे का टेम्परेचर दिया है. कितना दिया है सैटरडे का टेम्परेचर? 28. Can I put 28 over here in place of Saturday? If I put that, will I get Thursday plus Friday का value? Yes. कितना आएगा ये? 50. 50. Okay. Now they're asking me value on Wednesday. Can I put this Thursday plus Friday over here in this equation? Yes. So Wednesday plus 50. Why did I write 50? Because Thursday plus Friday is 50. तो ये हो गया 72. अब यहाँ से मुझे Wednesday का वैल्यू मिल गया. 22. समझ में आया ये सबको? Yes, ma'am. इजी था ये वाला. Anyone any doubts? No. Okay. Okay. ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, but I really want you people to solve it. Try करो एक बार. Okay? Try करके देखो. Go ahead. I'm here only. Question नहीं समझता है? Ask me.
Did you people understand the question? Oh, am I audible? Hello. Yes, ma'am. Okay. At least question समझा. I know this question will take time, but question समझ में आया है क्या? Yes. सैटरडे से स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले काउंट करना कि संडेज कितने आएंगे वो मंथ में. ओके. नॉर्मल डे पे 27 मेट्रो रेल गेट्स एवरेज नंबर ऑफ 270 ट्रैवलर्स ऑन अदर डेज. ओके. एंड 450 ऑन संडे. सो संडे छोड़ के बाकी मंडे से लेकर सैटरडे तक रोज 270 ट्रैवलर्स रहते हैं. संडे को 450 रहते हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको वो मंथ में संडेज कितने आएंगे वो सबसे पहले कैलकुलेट करना है. थिंक ओवर इट एंड डू इट. एंड उन्होंने बोला है फर्स्ट ऑफ सैटरडे, वो मंथ का फर्स्ट ऑफ दैट मंथ इज अ सैटरडे. ओके. सॉल्व हुआ है किसी का? I'm 300. लेट्स चेक. अभी सॉल्व करते हैं साथ में. ओके. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमको कैलकुलेट करने होंगे कितने संडेज आए. सो फर्स्ट ऑफ दैट सैटरडे जो है, सॉरी फर्स्ट ऑफ द मंथ है, वो क्या है? सैटरडे. सो नेक्स्ट सैटरडे कौन सा आएगा? कौन सी डेट आएगी नेक्स्ट सैटरडे की? 8th. यस और नो? Yes. +7 करते चलो. 8 + 7 15. तो वापस जो 15th आएगा वो भी सैटरडे रहेगा. 15 + 7 दैट इज 22nd, वो भी सैटरडे रहेगा. 22nd के बाद में 29, ये भी सैटरडे रहेगा. नाउ अभी हमको सैटरडेज काउंट नहीं करने, हमको क्या काउंट करना है? Sunday. संडे कौन से डेज आने वाले हैं? 5. इसके भी बाद वाला, इसके बाद वाला, इसके बाद और इसके बाद. सो हाउ मेनी संडेज वी हैव? 5. Sundays we have 5. Yes or no? Yes. Out of 30 days 5 दिन संडे के हैं, तो बचे हुए दिन जो है आपके 25, वो कौन से डेज है? अदर डेज. और 5 दिन जो है वो कौन से डेज है? Sundays. संडे को कितने ट्रैवलर्स जाते हैं? एक संडे को कितने ट्रैवलर्स जाते हैं? 450. Yes. और नो. एंड अदर डेज में कितने ट्रैवलर्स रोज जाते हैं? 270. समझा यहाँ तक? Yes. ओके. अभी हमको क्या कैलकुलेट करना है? टोटल नंबर ऑफ ट्रैवलर्स कैलकुलेट करना है सबसे पहले. ओके. सो 5 संडे के 450 के हिसाब से टोटल ट्रैवलर्स कितने होंगे? दैट विल बी 2250. इनटू 5. ओके. ये नंबर कितना आ रहा है? 0, दैट इज 2000. राइट ना? Yes. बाकी दिन का जो है ये संडे का कैलकुलेशन हुआ, और अदर डे का कैलकुलेशन कैसे चलेगा? दैट विल बी 270 इनटू 25. ये समझा? Yes. वृंदा, ये कैलकुलेशन समझ में आ रहा है डियर? Yes, ma'am. ओके. सो 25 zeros are 0, 25 sevens are 175, 7 750. 6 7.
So total number of travelers मिल गए क्या मुझे? No, we have to add We have to add. Yeah, basically if you add it, you will get it, right? 9,000. So how much we are getting over here? That is 9,000. 9,000. But in 9,000 travelers is what we are getting. Some. 30 days. Yes. And n कितना है? Number of days कितने हमारे पास? 30. So Yeah, can we now find out the average? What is average? 300. 300. 300, and that's the correct answer. That is 9,000 upon 30. समझा क्या सबको? Yes. Everyone. Yes, ma'am. Okay, गौरव आपका आंसर करेक्ट है, आकांक्षा आपका करेक्ट है, अमृत नहीं आपका आंसर आया था डियर? नहीं मैम. दर्शन आपका? No. Okay, but did you people understand this? Yes. Okay, so this what we did is nothing but it is called as weighted average. So मैंने आपको बोला था ना दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं और एक वेटेड एवरेज पे आते हैं. सो अभी जो कैलकुलेशंस किए हैं वो सारे वेटेड एवरेज, आई मीन ये जो क्वेश्चन किया दैट इज वेटेड एवरेज. वेटेड एवरेज क्या होता है? ग्रुप करते हैं हम लोग. जैसे यहाँ पे एक संडे का ग्रुप था और एक अदर डे का ग्रुप था, उनका सम हम डिफरेंटली फाइंड करते हैं. पूरा जो टोटल ग्रुप से उनके सम हम एड अप करते हैं, दैट विल बी द सम ऑफ द एंटायर people or days or whatever it is, and then you apply our basic formula, that is average is equal to sum upon n. Understood this? Now Yes. go ahead with the next one. Okay, by scoring 100 in the 20th inning, Tendulkar increases the average by 2. What was his average for first 19 innings? Let's do this together. So 20th by scoring 100 in his 20th inning, इसका मीनिंग क्या है? 20th inning जो था उसमें तेंदुलकर ने कितना स्कोर किया? 100. 100. इसका मीनिंग पूरे 20 innings का स्कोर 100 है या सिर्फ 20th inning का स्कोर 100 है? Save 20th. सिर्फ 20th का. ओके, एंड वो लोग क्या बोल रहे हैं कि जो एवरेज था, ओल्ड एवरेज से न्यू एवरेज में कितना डिफरेंस है? 2. तो देखते हैं हम लोग पहले ओल्ड एंड न्यू दो कॉलम्स बना लेते हैं. ओके, ओल्ड नंबर ऑफ इनिंग्स कितने थे हमारे पास? ओल्ड नंबर ऑफ इनिंग्स 19. 20. ये समझा क्या? ओके, Yes. एंड यहाँ पे एवरेज दिया नहीं हम लोगों ने, तो हम लोग क्या कंसीडर करेंगे अगर एवरेज नहीं दिया है तो? x. Yes. ओके, कैन वी फाइंड सम ओवर हियर? 19x. Perfect. Similarly, we'll work with the new values. N कितना यहाँ पे new inning, new number of innings कितने हमारे पास? 20. What is the average? What is the average? X plus 2. दो से increase हुआ. Okay. Can you find sum over here? 20x plus 40. 20x plus 40. समझा कैसे आया? Yes. Okay. Now, what are they saying over here? Can you people tell me कि ये जो changes हुआ, ये changes क्यों हुआ? क्योंकि 20th inning में तेंदुलकर ने कितना स्कोर किया? 100. So basically, ये जो आपका 19x था, ये स्कोर कब तक का था? तेंदुलकर का 19x ये स्कोर कब तक का था? 19th inning तक. 19 इनिंग्स तक का टोटल स्कोर, मतलब पूरा फर्स्ट इनिंग से लेकर तो 90th इनिंग तक उसका टोटल स्कोर कितना हुआ? 19x, करेक्ट ना? Yes. अगर ये नंबर में अगर मैं 100 एड अप कर दूं तो कैन आई गेट स्कोर ऑफ 20 इनिंग्स, टोटल इनिंग्स लाइक फ्रॉम फर्स्ट टू 20? Yes. और ये जो नंबर है, ओके आई जस्ट मेक इट मार्क इट विद सम, सो ये वाला जो नंबर है, दिस इज व्हाट स्कोर फॉर फर्स्ट टू 20th इनिंग. ये समझा सबको? एंड ये जो स्कोर है 19x, ये स्कोर कब का है? स्कोर फॉर फर्स्ट टू 19th इनिंग. ये समझा? ये इक्वेशन बैठ रहा है क्या? सो कैन वी गेट अ न्यू इक्वेशन लाइक 19x plus 100
is equal to 20x plus 40. Did you people understand how did I equate this and why did I equate it? Yes. Yeah. Can we solve this equation? How do we solve this equation, by the way? Algebra. How do we solve this equation? Plus Bring 100. terms together, bring constant terms together. So ये 19x को यहाँ पे डाल देते, 20 के यहाँ पे, 40 को यहाँ पे ले लेते. So this will become 100 minus 40 is equal to 20x minus 19x. So यहाँ पे x रह जाएगा और यहाँ पे 60. Can I say this is our final answer? आपको x का वैल्यू फाइंड करना था ना, एवरेज ऑफ फर्स्ट 19 इनिंग्स, जो हमने x कंसीडर किया है यहाँ पे. Yes or no? Yes. Answer is 60. Understood this? Anyone any doubt? See, doubt है ना तो उधर ही पूछो. Don't club that doubts in your mind. वो रह जाता है दिमाग में. And don't have that fear what others will think. मैंने इतना basic पूछा. No, everyone needs to clear their basic to basic. अगर calculation भी नहीं समझ रहा वो भी बोलो कि 19x 20x ये कैसे solve किया. Ask me. See, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, I cannot see your faces. अगर क्लासरूम होता तो I can read your faces and I can tell कि इसको समझा इसको नहीं समझा. अब प्रॉब्लम क्या है, आप जब तक बोलोगे नहीं तो मुझे आइडिया नहीं रहेगा कि आपको समझा या नहीं. इसलिए मैं आपको हर एक स्टेप के बाद पूछती हूँ कि ये समझा है नहीं समझा है. Just stop me wherever you feel that you are not understanding anything. I'll repeatedly make you, I'll explain you so that you understand that concept really very well. Okay? 19x plus 100 कैसे आया? वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया. हाँ वो आया मुझे ध्यान में दर्शन, आपका डिस्कनेक्ट हो गए थे. See, 19x क्या था दर्शन? First 19 फर्स्ट 19 नंबर. टोटल, राइट? और ये जो 20x plus 40 ये जो आया ये क्या आया हमारा? फर्स्ट इनिंग से लेकर तो इनिंग का टोटल स्कोर. यस. अगर 19th इनिंग और 20th इनिंग में क्या चेंज हुआ? इसमें 20th ये जो स्कोर है ये स्कोर कौन सा है उसका? 20th इनिंग का 19th इनिंग प्लस 20th इनिंग will give me total of 1 to 20th इनिंग. यस. अभी ये इक्वेशन समझा? यस. ओके. आगे को आया क्या ध्यान में, कैसे सॉल्व किया है? बेसिक. हाँ, ये एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बट यहाँ पे आई वांट यू पीपल टू सॉल्व दिस. ट्राई दिस. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है.
Yes, people. Anyone with the answer? हेलो, किसी का आंसर आया यहाँ पे? No, ma'am. No. साथ में करते हैं. Cost of 10 apple and 5 oranges is ₹5. मतलब जब आप 10 एप्पल और 5 ऑरेंजेस खरीदते हो तो 5 रुपए ऑन एन एवरेज कॉस्ट पड़ रहा है एक फ्रूट का. तो हम लोग क्या करेंगे? लेट कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल is equal to ₹8. Okay, and cost of 1 orange is equal to ₹4. Okay, so 10 एप्पल का कॉस्टिंग कितना रहेगा? अगर एक एप्पल का कॉस्टिंग A है तो 10 एप्पल का कितना रहेगा? 10. 10 और 5 ऑरेंजेस का 5O. ओके, Yes, sir. यहाँ पे ये जो 5 दिया ये क्या दिया? एवरेज दिया. कितने फ्रूट्स का एवरेज है ये 5? 15 fruits ना, 10 एप्पल और 5 ऑरेंज. Yes. Yes, so average is 5 and number of fruits is equal to 15. तो total sum कितना आएगा यहाँ पे? 75. Can I say this is equal to 75, like 5 oranges, okay, plus 10 apple is equal to ₹75. ये समझा क्या? Yes. Similarly, next equation क्या? 5 apple और 10 oranges. So 5 apple plus 10 oranges is equal to average is 4. So can you tell me total cost? 60. 60. Okay. And आपको क्या find करना है? 20 apple और 4 oranges का rate. Now you have to find 20 apples and 4 oranges. क्या करें यहाँ पे कि हमको ये solve होगा ये? Can we find value of 1A and 1O? ये इसको solve करें? Yes. करेंगे. Yeah. So let's say हम लोग इसको ये पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? 10A plus 20O is equal to 120. 120. और ये वाला इक्वेशन इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. लाइक 10A plus 5O equals to 75. ये सब्ट्रैक्ट करना कितना आएगा? 10A कैंसिल, 20O minus 5O कितना हो जाएगा? ये 15 ऑरेंजेस is equal to 120 में से 75 चला गया. कितना बचा? 45. कितना बचेगा? 45. 45. बोल रहा है आंसर बोल. 45. 45. तो 45. मतलब एक ऑरेंज की वैल्यू कितनी हुई? ₹3. Yes. Yes. कर दो कोई भी इक्वेशन मतलब यहाँ पे डाल दिया. सो कैन वी से 10A plus 3 into 5 is equal to 75. So therefore 10A is equal to 75 minus 15. डायरेक्टली लिख दो क्या? 60. हमको एक ऑरेंज मिल गया, एक एप्पल मिल गया. नाउ कैन वी फाइंड कॉस्ट ऑफ 20 एप्पल्स? 20 एप्पल्स का कॉस्ट कितना रहेगा? 20 into 6. 120. 120. 4 ऑरेंजेस का कॉस्टिंग कितना रहेगा? 4 into 3 which is equal to 12. तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा फ्रूट का? ₹132. Yes. 132 रुपीज में कितने फ्रूट्स खरीदे आपने? 24. तो ये हुआ आपका 100. N हुआ आपका 24. Can you find average over here now? That will be 132 upon 24. कितना आना चाहिए ये एवरेज? अप्रोक्सीमेट 5. 5 का कितना होता है? 5.5. 5 point something something आएगा. Yes. Because 24 5 से 120 होता है. तो आंसर आपका 5 point something, that is 5.5. अभी समझा सबको ये? Yes, ma'am. Next Yes. In an exam,
average marks obtained by student was found to be 55. There was some error that was detected, and marks of 50 students had been changed from 95 to 65. Hence, the average came down by 10. So basically, क्या हुआ यहाँ पे, एक एग्जाम था, ओके, वहां पे एवरेज कितना, सबसे पहले एवरेज कितना निकला, 55, ठीक है। एरर क्या हो गया था, 50 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स थे, मतलब आपका एन वैल्यू भी दिया हुआ है, ये आपका ओल्ड एवरेज है, ओके। ये जो 50 है ये कुछ नहीं है, ये एन का वैल्यू दिया है। यू पीपल रिमेम्बर, हम लोगों ने वो एक पर्सन ग्रुप में से जाता है और एक पर्सन ग्रुप में आता है, वो क्वेश्चन किया था। Yes. यस, ये कुछ वैसा ही है, मतलब वो स्टूडेंट्स को कितना मिला था, 95 मिला था, ठीक है। बट वो एरर की वजह से वो उनके मार्क्स कितने हो गए, 65, ओके। उसकी वजह से एवरेज 10 से कम हो गया, ओके। आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग द एग्जाम इज, मतलब ये जो 50 है, आई एम सो सॉरी दैट इज नॉट एन, ये 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स में गड़बड़ हुआ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको फाइंड करना है। आई गिव यू 5 मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन, दिमाग लगाओ और सॉल्व करो, थिंक ओवर इट।
आया किसी का आंसर? Anyone with answer? Okay. Not getting. Okay, fine. चलो साथ में करते हैं. Now over here, if you see एक एग्जाम में, we don't know कितने लोग थे जिन्होंने एग्जाम दिया, okay? But 50 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स थे वो गलत प्रिंट हो गए. कम प्रिंट हुए या ज्यादा प्रिंट हुए? कम, ज्यादा ज्यादा, कम हुए या ज्यादा हुए? कम हुए. Was changed from 95 to 65. ज्यादा, Think. Statement पढ़ो. 95 होना चाहिए था, but वो 65 प्रिंट हो गया, मतलब कम हुआ प्रिंट. हाँ, एक स्टूडेंट का मार्क कितने से कम प्रिंट हुआ? 30 से कम हुआ, राइट? ऐसे कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स के प्रॉब्लम हो गए? 50. Yes or no? So 50 स्टूडेंट्स का टोटल मार्क्स का हेरा फेरी देखो तो टोटल मार्क्स का हेरा फेरी कितना रहेगा आपका? 50 into 30. ये समझा? ये समझा क्या? Everyone understood? See, एक स्टूडेंट के मार्क्स में कितने का गड़बड़ हुआ है? 30 मार्क्स का गड़बड़ है. तो 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स में टोटल मार्क्स का गड़बड़ कितना होएगा? 1500. yes, Okay. Now we don't know how many students were there initially और वही हमको फाइंड करना है. एंड ये पूरे चक्कर में जो एवरेज था वो कितने से कम हुआ? 10 मार्क्स से. ये दिमाग में रखना है. ओके. सो नाउ लेट्स सी ओवर हियर. सो बेसिकली ये जो 1500 है, दिस इज नथिंग बट द डिफरेंस इन द टू सिनेरियोज दैट यू आर गेटिंग. लेट्स सी ओल्ड सिनेरियो, न्यू सिनेरियो. ओल्ड सिनेरियो में व्हाट वाज द एवरेज? दिया है क्या एवरेज? ओल्ड एवरेज 55. 50, ओके. ओल्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता है क्या? ओल्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब क्या? x, ओके, एक्स. तो इनका सम कितना होना चाहिए था? 55. 50x, 5x. अभी ये जो न्यू नहीं हो सकते, बट यहाँ पे ये जो 200 है, ओके, कैन वी से कि ये मार्क्स जो थे 1500 ये क्या हो गए थे? कम हो गए थे. और एक्चुअल जो आपका सम था, राइट, एक्स स्टूडेंट्स का जो टोटल सम आना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था? ये जो 55x आया है ये क्या होना चाहिए था? What it should be? Think over it. ये जो 1500 हुआ है, ये 1500 से आपका टोटल स्कोर कम हो गया है. Yes or no? The average came down by 10 marks. 45 to 50. Sorry. What is the new average over here? Average came down by 10 marks. मतलब new average कितना रहेगा आपका? 45. 40, right? And number of students तो change हुए ही नहीं ना आपके, वो तो उतने ही थे. Yes or no? इनका सम कितना रहेगा? 45x. और ये दो ग्रुप के बीच का जो डिफरेंस है वो हमको पता चल गया. कितना वो डिफरेंस? 1500 का. Yes or no? So can we say 55x minus 45x is equal to 1500? So 10x is equal to 1500. So what is the value of x? 150, अभी समझा? Yes, ma'am. Okay. Yes. Go on to the next one. Okay, let's do this together. In a mathematics exam, a student scores 30% marks in first paper out of 180. So 180 में से उसको कितना स्कोर मिला है? 30%. उसका एक्चुअल स्कोर निकाल सकते हो? 180 मार्क्स का पेपर था, उसका 30% उसको मिला है. कितना मिला मतलब उसको? कितने मार्क्स मिले उसको?
What is the score of first paper? 54. That is 30% 54. of 180, which is equal to 54. ये समझा? Okay. How much should he score in second paper? Second paper जो था वो कितने में से था? 150 में से था. If the overall average should be at least 50%. Now दोनों पेपर्स, अभी सेकेंड पेपर का मैक्सिमम मार्क्स पता है 150 है. यहाँ पे कितना स्कोर उसने करना चाहिए? दैट इज द क्वेश्चन मार्क. सच दैट दोनों पेपर का, व्हाट इज दोनों पेपर का मैक्सिमम स्कोर? ये कितना आएगा? मैक्सिमम ऑफ टू पेपर्स कितना आएगा? 180 प्लस 150. यस और नो? और ये दोनों पेपर्स को मिला के उसको कितने परसेंट मिलने चाहिए थे? 50%. What is 50% of 330? कितना है 50% of 330? 165. 165. मतलब 54 प्लस यहाँ के मार्क्स, let's say this is x, this is equal to 165. ये समझा क्या? सी दोनों पेपर में पास होने के लिए उसको 165 मार्क्स की जरूरत है. एक पेपर से उसको 54 मिला है, तो दूसरे पेपर से उसको कितना मिलना चाहिए? 165 माइनस 54 कितना होता है? 111. Yes. 111. तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखते हो अभी आपको परसेंट फाइंड करना है. दैट इज व्हाट यू हैव टू फाइंड. 111 इज व्हाट परसेंट ऑफ 150? क्वेश्चन समझा? This is the calculation that you have to perform. So क्या आंसर आना चाहिए आपका? 74. 70. That's the answer. Understood everyone? Yes. In 5 compulsory subjects, a candidate scored an average of 60 marks. कंपल्सरी सब्जेक्ट, कितने कंपल्सरी सब्जेक्ट्स थे हमारे पास में? 5. Number of compulsory subject 5. Okay, what was his average over here? 60. 60. Can we find sum over here? 300. 300. Now, talking about optional subjects. How many optional subjects do we have? 2. 2. He scored equal marks. मतलब पता नहीं एवरेज क्या है, बट उसने इक्वल मार्क्स स्कोर किया. ओके, सो लेट द एवरेज ओवर हियर बी x. तो यहाँ पे सम कितना हो जाएगा? 2x. 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 बराबर? Okay. Now, if the average of the combined score in compulsory and optional is 56, मतलब ये दोनों सम को अगर मिला दो, so आपको टोटल सम कितना मिल रहा है? 300 plus 2x. Yes. Total n कितना रहेगा? What will be total n? Total number of subjects कितने हैं? 7. 7. So basically ये total sum upon total n आपको कितना देगा? Final average. So final average क्या रहेगा? Total sum upon total n. What is total sum we got? What is the total of sum that we got? 300 300 plus 2x. upon 7. और इनका फाइनल एवरेज कितना दिया हम लोगों को? 56. 56. ये एक इक्वेशन बन गया हमारे पास. Can I solve this equation? ऊपर सॉल्व करूं, जगह नहीं है मेरे पास. So it will be like 300 plus 2x upon 7 is equal to 56. इसको सॉल्व करना है अभी हम लोग को. How to solve this? 56 into 7. 7. So 300 plus 2x is equal to 56 into 7. कितना आएगा 56? 392. 300 plus 2x is equal to 39. So 2x is equal to 92. So x कितना आएगा? 36. वही पूछा ना उन लोगों ने.
Yes. Yes, and that's all. समझ में आया? See, Yes. बट उन्होंने इक्वल मार्क्स ही स्कोर किए. अगर आपको 46 मिले और लेट्स से गौरव को भी 46 मिले, तो दोनों का एवरेज क्या रहेगा? 46 ही रहेगा ना? अंडरस्टूड दिस? Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन है. मृन्मयी, आपकी तरफ से कुछ भी रिप्लाई नहीं आ रहा. आर यू गेटिंग इट? यस मैम, समझ रहे हैं. ओके. This we cannot solve because हमने number systems नहीं लिया हुआ है, इसलिए उसको नहीं कर रहे. Okay, this question I want you people to solve. एक बंदा जाता है, एक बंदा आता है, वो वाला टाइप का क्वेश्चन नहीं है. Give it a try. This one was easy. आया आंसर? People, did you get the answer? At least say yes, no. Okay, आकांक्षा, आपका आंसर आया है. और किसी का आया है? Do you want more time? दर्शन, गौरव, मृन्मयी, आपको और टाइम चाहिए?
अगर आप लोग बोलोगे नहीं तो मुझे नहीं समझ में आएगा पीपल. No, ma'am. Okay, let's solve that. Average age of family of 11 members is 20. So average दिया हुआ है हम लोग को, how much it is? 20. What is value of n? 11. Can we find sum over here? 220. If age of the youngest member is 10 years, जो सबसे छोटा है उसका age is 10 years. What was the average age of the family just before the birth of the youngest member? Now, youngest member कितने साल का है? 10 साल का है. वो born होने के पहले, मतलब हमको कितने साल पीछे जाना है? How many years back? 10 years back. We have to go. Okay. 10 years back, ये जो sum था 220 का, ये 10 लोगों का सम है ना? 220, सॉरी 11 लोगों का सम है 220. बराबर ना? अभी यहाँ पे 11 लोगों का सम 220 है. ओके, 10 साल पीछे अगर जाओगे तो सबकी एज में से 10 निकालना पड़ेगा. Let's say if I tell you right now that Darshan, you are 20 years old. Darshan, 10 साल पहले आपका एज 10 साल. 10. Okay. Let's say I say Akansha is 21 years old. So 10 साल पहले Akansha का age is 11. Now what is Yes. the total present age of Darshan and Akansha? 20 plus 21, that is 41. And 10 साल पहले का इनका सम कितना आएगा? 21. हमने क्या किया? हमने 20 माइनस किया 41 में से 21 लाने के लिए. समझ में आ रहा है? So 220 में से हम लोग कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे? 110. ये 110 मतलब क्या? 10 years पीछे जा रहे हो ना आप, तो हर एक के एज का 10 आपको सब्ट्रैक्ट करना है. Yes or no? Yes. That will be the sum 10 years back, 220 minus 110, which is equal to 110, and that is the sum 10 years back. What is value of n 10 years back? 10. 10, क्योंकि वो जो छोटा सबसे छोटा बंदा है वो तो born ही नहीं हुआ था, right? Now sum is 110, n is 10. Can we find average over here? क्या आएगा average? Sum दिया है, n दिया है. 11. 10 upon 10, which is equal to 11. Understood? How do we get this? Yes, ma'am. आकांक्षा, समझा कहाँ गलती हुई है? हाँ, ma'am. Okay. Let us solve few questions which are based on weighted average, क्योंकि उसके हमने ज्यादा नहीं किए हैं. Just a second, people. Okay. This question. Now over here, if you check, a milkman makes pure full cream milk at 44 rupees per liter with toned milk which is sold at 24 rupees per liter. In such a proportion that the cost of the mixture becomes 32 rupees per liter. Find the ratio of pure cream milk to the toned milk in the mixture. Now let's try to understand. Can we say यहाँ पे दो type के milk है? Which is type 1? Full cream. And type 2 हमारे पास क्या है? Toned. Toned milk. What is average of full cream milk? Average price कितना है उसका? 44. And toned milk का average price कितना दिया है? 24. 24. Do we know the quantity? क्या quantity में mix किया है? मतलब n का value पता है क्या हमको दोनों जगह पे? No. No. In fact, वही find करना है, उसका ही ratio find करना है. So let this be x liters, okay? And let this be y liters. ठीक है? यहाँ पे sum बता सकते हो कितना आएगा? 44x. ठीक है. और यहाँ पे sum कितना आएगा? 24y. 24y. Okay. ये जो 32 रुपीस दिया है, ये क्या दिया है? इनका total average? Yes or no? Total average कितना दिया हम लोगों को? 32. Please. Okay. What will be the total n? 44x plus यहाँ का x plus y. लीटर और यहाँ का y लीटर कितना हो गया ये?
x plus y लीटर, ये समझा क्या? टोटल सम कितना रहेगा? 44x plus 24y. Yes or no? Average है, n है, sum है. Can we form an equation? Average is equal to sum upon n, right? So average is 32. Sum है 44x plus 24y upon n. n कितना आपके पास? x plus y. ये इक्वेशन को सॉल्व करके हमको x is to y का रेशियो लेना है. सॉल्व कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई. ये x plus y यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 32x plus 32y is equal to 44x plus 24y. Did you people understand this equation? Now bring x terms together and y terms together. Okay, so x को यहाँ पे लेके आ जाते हैं, y को यहाँ पे. So 32y minus 24 कितना आएगा? 44 minus 32x. 12x. Can we find x upon y का value? x upon y का 8 upon 12. 4 2s are 4 3s are. कौन सा ऑप्शन मार्क करोगे? उन्होंने फुल क्रीम टू टोन मिल्क पूछा है ना. फुल क्रीम x था, टोन y था, इसलिए मैंने x upon y फाइंड किया है. बिकॉज अगर आप देखते हो दो ऑप्शन है, 3:2 भी है, 2:3 भी है. So don't get confused in this. Understood this? Yes. Okay. ये सॉल्व करो अभी. ये ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी. गिव इट अ ट्राई.
Done, people? Okay, let's try this together. So if you check over, hello, am I audible? Yes. Yes. Okay. Now, how many oranges at 5 for rupees 10? इसका मीनिंग क्या होता है? 5 ऑरेंजेस 12 रुपए के, सिंपल लैंग्वेज में. ओके, तो अगर 5 ऑरेंजेस 12 रुपए के हैं तो एक ऑरेंज कितने का होगा? अगर 5 ऑरेंजेस दे आर फॉर रुपीज 12 तो एक ऑरेंज का प्राइस कितना रहेगा? 3.4. 5/12 लिख दूं? या to avoid the decimals I'll write it as 5/12. ये समझा? ओके, ये 5/12 ये प्राइस के हमारे पास लेट्स से x ऑरेंजेस है. ओके, एंड दूसरा केस क्या है? 300 ऑरेंजेस है हमारे पास में, बट उसका रेट कितना है? 3 ऑरेंजेस फॉर 12 रुपीज. अगर 3 ऑरेंजेस 12 रुपीज के है, ओके, तो एक ऑरेंज का प्राइस कितना रहेगा? Three by 12. No, just hold on. 5 oranges 12 rupees के, तो एक orange will be like 12/5 होना चाहिए था ना ये. I made a mistake while writing. 12/5 that is how much? 2.4 लिख दो डायरेक्ट. Shall I? Yes. एंड यहाँ पे एक ऑरेंज का प्राइस कितना रहेगा? 12/3 मतलब कितना हो गया? 4 रुपीज. 4. अभी उन लोगों ने पूछा है ये एक्स ऑरेंजेस का वैल्यू पूछा है कि ये एक्स ऑरेंजेस कितने हैं हमारे पास, सो दैट जब आप ये पूरा लॉट मिक्स करोगे, मतलब एक्स ऑरेंजेस और 300 ऑरेंजेस को मिक्स करोगे, तो इनका एवरेज प्राइस एक डजन ऑरेंजेस का कितना रहेगा? 36. ना 36 रुपीज एक डजन का है. ओके, 1 डजन इक्वल्स टू 36 रुपीज. 1 डजन इज हाउ मेनी ऑरेंजेस? 12. सो यहाँ पे 1 ऑरेंज का प्राइस कितना रहेगा? 3. ये समझा? सो ओवरऑल एवरेज इज 3 rupees. Okay, so now let's try to find out how we will work with this. Now let's try to find out total sum. What will be the total sum? हमने टोटल खर्चा कितना किया है? X oranges 2.4 rupees के. Yes or no? So इनका टोटल कितना होगा? That will be 2.4x and 4 रुपए के 300 ऑरेंजेस है. तो इतना पैसा आपने खर्च किया है, उसमें आपने टोटल ऑरेंजेस कितने खरीदे? That is x plus 300. करेक्ट ना? एंड इनका टोटल एवरेज कितना मिला आपको? यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है. How much is that? 3.
Let's put this in our normal equation, that is average is equal to sum upon n. So when we say that average is equal to sum upon n, average कितना आया 3, sum कितना है 2.4x plus 300 into 4, directly I'll write it as 1200 upon 300 plus x. Normally solve करते cross multiply करके, you will get 900 plus 3x is equal to 2.4x plus 1200. Let's bring x terms together and constant terms together. So 2.4x यहाँ पे लेके आया तो 3x minus 2.4x कितना हो जाएगा 0.6x is equal to 1200 minus 900, which is equal to 300. So x का value will be how much? Did you people understand this? ये थोड़ा difficult level का question हो रहा है अभी, okay? जो last 2-3 questions देखे थोड़ा difficulty level बढ़ाया है. ऐसे questions एक खादा मिलेगा, like सारे topics को mix कर दो ना, तो 30 marks में से like 2 या 3 questions difficult category के आएंगे, okay? So don't worry. अगर ये questions थोड़े confusing लग रहा है, so don't worry. It's not necessary that you solve difficult question in exams. No one is going to attend all 200 questions. You have to skip some kind of questions also, okay? So if you just try to figure out which is the easy, which is medium, which is difficult in your exam, you are through to the exam. Selection अगर proper रहा ना, trust me आपका score बहुत अच्छा आता है, okay? Let's take 1 or 2 more questions. Is it okay if I take 1 or 2 more questions? है capacity लेने की? Hello? Hello? Am I audible? Hello? People, can you hear me? Gaurav? Brindmay? Yes, sir. Yes. Please reply. Can we take 1 or 2 more questions? Yes. Yes. Okay. Okay. Now this is really very easy question. Solve this and tell me the answer. Quickly solve this. $52.8. Great. Let's check this. दो ग्रुप्स है हमारे पास, A group and B group. A group का एवरेज कितना दिया है? What is average of A group? 56. 56. What is average of B group? 50. What is N in A group? How many people are there in? 14. How many people are there in B group? 16. Can we find sum of both the groups? Yes. Multiply करोगे तो sum मिल जाएगा आपको, correct? Yes. 14 6 84 8 carry 974. कितना आएगा? 7. 784. यहाँ पे कितना आ रहा है sum? 800.
Yes. Find total sum of the complete two teams together. That will be 24. What is total in 30. 14 plus 16, that is 30. इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका यस 50%. अगर आप देखते हो सिर्फ एक ही ऑप्शन में पॉइंट है, यहाँ पे नीचे जीरो है, जीरो निकालो तो पॉइंट आएगा, एक ही ऑप्शन में पॉइंट है तो आंसर क्या आना चाहिए 52.8. अंडरस्टूड? Yes. Yes. Let me check if we have anything, any question which is left out. Because यहाँ पे दो topics merge किए हुए हैं यहाँ पे, so I'm not taking another topic over here today. Okay, fine people. The questions based on averages we are done with. By the way, how many, any of you have any difficulty in any questions that we solved today? Yes, anyone, any difficulty? No. No, are you sure? Are you sure people? Yes. Okay, just hold on for like few minutes. मैं क्या करती हूँ अभी के अभी मैं ये जो document हमने आज solve किया है ना, I'll just put it on the group. इसके पहले हमने एक वैदिक मैथ्स किया था, वो भी मैं डाल रही हूँ. And one more topic we did, that was simple maths. Do you want that also? एक reasoning किया है, वो मैं डाल रही हूँ. 3 topics मैं अभी group पे डाल रही हूँ आपके. Anything apart from that you want? एक लॉजिकल रीजनिंग का सेशन किया था, उसके क्वेश्चंस डाल रही हूँ. एक वैदिक मैथ्स का सेशन किया था, उसका टॉपिक के क्वेश्चंस डाल रही हूँ मैं. एंड दिस वन. एंड हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिसीव्ड द मटेरियल? कैन एनीवन टेल मी? मिला है मैम. आपको मिल गया? ओके. और किस? गौरव आपको मिल गया? हाँ. दर्शन आपको? No. सुदर्शन, डू यू स्टे इन नासिक? No. Where do you stay? Nearby Nasik? Yes. Simple. Okay, so can you just collect it like any day you can come and collect, so that you know now you if you have the material you people can start practicing. Okay, आप लोगों को सबको एक स्पाइरल वाइन बुक मिला रहेगा? नहीं मैम. नहीं मैम. पूरा सेट मिला है छोटी छोटी बुक्स का, पतली पतली बुक्स का. Yes. शीट्स दिए मैम. हाँ, उसमें है ना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 1, 2 बुक्स है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, उसमें से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 1 निकालना है. एंड उसमें से जो फर्स्ट टॉपिक है बॉड मास पे बेस्ड है वो सॉल्व करना है, और एवरेजेस का टॉपिक है जो थोड़ा बाद में रहेगा, वो आपको ढूंढना है, इंडेक्स में से आप ढूंढो एंड सॉल्व द टॉपिक्स, दीस 2 टॉपिक्स, स्टार्ट सॉल्विंग देम. दिस वीक यू नीड टू कंप्लीट बोथ द टॉपिक्स. ओके. And Darshan, check it अगर आपका कोई, you know, if anyone from Pimpalgaon is coming here to Nasik or something, if they can collect your material from the center, that will be really, you know, helpful for you. Okay. Okay. Yeah. Anything apart from this? यस मैम. बोलो. मैम वो आपने पिछले लेक्चर में बताया था वो जब नॉमिनेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, तो देन हाउ टू सॉल्व इट? नॉर्मली जब आप डिवीजन करते हो ना, डिवीजन का जो आंसर रहता है, अगर आप न्यूमरेटर को बढ़ाते हो ना तो आपका ओवरऑल डिवीजन का वैल्यू बढ़ता है. ओके. अगर आप न्यूमरेटर को कम करोगे तो ओवरऑल आपका जो आंसर आ रहा है वो भी कम होता है, बट डिनोमिनेटर में उल्टा रहता है. ओके. डिनोमिनेटर को जितना बढ़ाओगे आपका आंसर छोटा होएगा, और डिनोमिनेटर को जितना छोटा बनाओगे उतना आपका ओवरऑल आंसर बड़ा होएगा. ओके. ये लॉजिक समझा क्या? राइट इट डाउन, अदरवाइज राइट इट डाउन. राइट इट डाउन. यस. ओके. इफ यू इंक्रीज न्यूमरेटर, सो आप ऐसा लिखो, न्यूमरेटर इंक्रीज, आंसर इंक्रीजेस. ओके. न्यूमरेटर डिक्रीज, एरो से करो, एन इंक्रीज, आंसर डिक्रीजेस. ठीक है. नेक्स्ट लाइन पे if n decreases, n का वैल्यू कम होता है तो क्या होगा गौरव? ओवरऑल आंसर आपका कम होगा.
ओके Yes. ओके, डिनोमिनेटर में पूरा उल्टा होता है। डिनोमिनेटर में क्या होता है, अगर डिनोमिनेटर को आप बढ़ाते हो तो आंसर कम होता है। इफ डिनोमिनेटर इंक्रीजेस देन ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज, Decreases. राइट। एंड अगर आप उसको क्या बोला मैंने, इंक्रीज बोला ना, उल्टा कर दो ना, अभी उल्टा करके आपको लिख के आएगा। मैंने क्या बोला, मैं याद नहीं आ रहा मुझे भी। Denominator decreases, answer increases. डिक्रीजेस लिखा है या इंक्रीजेस लिखा है? Sorry ma'am. आपने जो थर्ड स्टेटमेंट लिखा है वहां पे डिनोमिनेटर इंक्रीजेस लिखा है या डिनोमिनेटर डिक्रीजेस लिखा है? Increases. ओके, अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, डिनोमिनेटर डिक्रीज होता है तो ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज होता है। Increase. अंडरस्टूड दिस? Yes. मैम और वो परसेंटेज के लिए पूछा था मैंने, मतलब 41/695. नहीं नहीं 1132/1069. मैम मुझे भी यही नहीं आया 1132 डिवाइडेड बाय 1069। एक मिनट ना, ये सिर्फ एक्सपोर्ट हो रहा है ना, इसलिए मेरा अटक गया है स्क्रीन। एक 2 मिनट दो। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, स्क्रीन दिख रहा है अभी? नंबर बोलो मुझे, क्या नंबर है? 1130 1130/1069। 1069. अच्छा, 32 मैम, 1132. 1132 अभी ठीक है? Yes, yes. अभी यहाँ पे क्या हो गया, ये नंबर बड़ा है इससे, मतलब 100% से भी ज्यादा आंसर है आपका। यस और नो? Yes. तो कहने से 100% ऑफ 1069 कितना रहेगा? 10। 106. हम कितना एक्सीड हो गए 100 से, हम लोग कितना आगे चले गए, मतलब 1132, इसमें से हम क्या माइनस करेंगे? 1069। अगर माइनस करते कितना आ रहा है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, 63 का फर्क आ रहा है। Yes. अभी आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या फाइंड करना है? 63 1069 का कितना परसेंट है, उसके लिए हम क्या करेंगे? अभी 10% के साथ काम करेंगे तो 106 10% आता है, बराबर ना? Mm-hmm. पर 10% के साथ काम करके फायदा नहीं है, 63 चाहिए, तो हम किसके साथ काम करेंगे? 1% ऑफ 1069 निकालेंगे, कितना आएगा ये? 10.6 के आसपास। अभी मुझे 63 चाहिए और मेरे पास 10.6 है, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं? 6 के आसपास में मल्टीप्लाई करूं? Yes. यस, तो ये कितना हो जाएगा अगर मल्टीप्लाई करूंगी? 6 6 36, 3 63.6 के आसपास आ गया। Yes. दैट मींस आपका ओवरऑल आंसर क्या रहेगा? 100। यहाँ पे 6% कैलकुलेट किया था ना, तो आपका आंसर क्या आएगा? 100 + 6 विच इज इक्वल टू 106%। अभी समझा? Yes. ओके, आपको समझा मृण्मयी? यस मैम। ओके, और कोई डाउट्स और कोई क्वेरीज? मैम आप जो ग्रुप पे डालने वाले वो आज मतलब सिखाए वो सारे सम्स क्या? आज का और पिछले हफ्ते का। ओके ठीक है, थैंक यू। ओके, एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट? दर्शन, आपके कोई डाउट्स, आपके कोई क्वेरीज? नो? ओके, सो जस्ट इफ यू गिव मी 2 minutes तो चेक भी हो जाएगा आपका कि आपको मिला या नहीं। If at all you can wait for just 2 minutes, I'm just opening that WhatsApp web and I'll just transfer it. Okay, people, it's taking time. एक 2 मिनट में आपके ग्रुप पे आ जाएगा. Okay, if you want, you can leave the meeting.